Dear students, welcome to the class. In today's session, we'll be solving All India Sainik Schools Entrance Exam 2019 only maths portion, and as you can see, this paper contains 50 questions of 3 marks each. Alright, let's begin. In question number 1, we have if the square of a number is added to the square of 28, the result is 1808. What is the number? हमारे को given है, let us consider the numbers to be A and B. Now, according to given question, A square plus B square is equal to 1808. Now the number हमारे पास है 28 का स्क्वायर. Let the number be A. So 28 का स्क्वायर, 28 square means A square is equal to 28 square. 28 square means 28 multiplied with 28 and the answer is 784. So इसकी वैल्यू हमारी जो इक्वेशन उसमें पुट करते हुए 784 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1808. 784 को RHS में ले जाएंगे तो प्लस 784 will become minus 784. So b square is equal to 1808 minus 784 and after subtraction the result would be 1024. अगर किसी नंबर का स्क्वायर 1024 है so उसका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका होता है हमारे पास 1024. We'll make pairs of 2 each. Now 3, 3, 9, 1. Then complete pair को नीचे हम लेके आते हैं. So 124 and here as a divisor it would become 6 then dash dash. So 6 dash को किससे multiply करें कि it becomes 124. So obviously the answer would be 2. So 2 2 जा 4, 2 6 जा 12. So it means कि हम जिसको ग्रीन में हाईलाइट करें this is our square root. So the answer is 32. Option number C is correct answer. Alright. So this is our correct answer. Now moving on to question number 2. In question number 2 we have if the area of rectangular garden of 5 meter breadth is this, then what would be the length of the garden? Perfect. It is a rather easy question. So we know the area for rectangular is for any rectangle is equal to length into breadth, and in this question we are given breadth is equal to 5 meter and area is equal to 300 meter square. Square meter means meter square. So putting these values in the formula, area is equal to 300 is equal to length multiplied by 5. The relationship between L and 5 is multiplication. So 5 जब LHS में जाएगा तो it will go in the denominator. So 300 divided by 5 is equal to L. So upon simplification it would be 6 are 0. So length is equal to 60 meter. So according to the given options it is option number A. Option number A is correct answer for second question. In question number 3 we are provided a man covers a distance of 40 km. Okay, he covers first 10 km at 10 km per hour, second 10 km at 20 km per hour, third 10 km at 30 km per hour and the last 10 km at 40 km per hour. So what is the average speed of the man? Alright, so इस क्वेश्चन को कवर करने के लिए what we will do is first we will draw a diagram and क्योंकि average speed निकालनी है so first the formula for average speed AVG means it is in shortcut for average. Average speed is equal to total distance covered upon total time taken divided by total time taken. So अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे को now we will make a straight line and make 4 portions. So this is second portion, this is third portion and this is fourth portion. So क्योंकि वो 4 अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा है so we have let us suppose कि A B C D E. Now for portion AB, portion AB में जो उनका टोटल डिस्टेंस है इक्वल डिस्टेंस 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर and the last phase is also 10 किलोमीटर.
It means the total distance covered which we mark with green is 40 km. So उसको 4 parts में बांट दिया गया. For covering distance from A to B, उनका जो speed है person का, that is 10 km per hour. So we will write at 10 kmph. For second it is 20 kmph. From C to D it is 30 kmph. For fourth portion, which is from D to E, it is 40 kmph. So what we will be doing is, first of all, we will try to find out using the formula for speed कि what is the time. हम time को find out करने की कोशिश करेंगे कि going from point A to B उनको time कितना लगता है. So we know the formula, and the formula is speed is equal to distance upon time. So time would be distance upon speed. So ये formula हम use करेंगे. अब आप देखिए. So from A to B, going from point A to B is distance covered is 10 km and the speed is 10 kmph. So we'll write it down as 1 hour. Now when the person goes from point B to C, so time taken from B to C is distance covered is 10 km and the speed is 20 kmph. So it is 1 by 2 hour. Time taken from point C to D is equal to distance covered is 10 km and the speed of the person is 30. So 1 by 3 hour. When he goes from point D to E, the time taken would be 10 upon 40, which is equivalent to 1 by 4. Now, since we have to find out the total time taken, so total time taken अगर हमारे को find out करना है, so we have to cover, we have to add, जो भी हम yellow से highlight करें इन सभी को add करना पड़ेगा, ठीक है? So using fraction method, we will add all of them. So total time is equal to time taken from point A to B plus time taken from point B to C plus time taken from C to D plus time taken from D to E, which is so A to B is 1. So as we know, किसी भी number को हम fraction में लिख सकते हैं divided by 1 plus B to C is 1 by 2 plus C to D is 1 by 3 plus D to E is 1 by 4. Now इनको solve करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो के पेयर बना देंगे. Now using the formula for addition of fractions, both denominators को multiply करते हैं, 2 1 जा 2 and then cross multiply, 2 1 जा 2 plus 1 multiplied by 1 is 1 plus 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 plus 3 1 जा 3. Alright, so 2 plus 1 is 3 by 2 plus 7 by 12. Then again, so 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 plus 7 2 जा 14. So it is 50 by 24 out. Now putting all these values in the first formula that we have written, the formula is average speed is equal to total distance covered is 40 kilometers as we already know, and the total time taken is 50 by 24 hours. So this will become the formula A upon B by C. So C जो है न्यूमरेटर में चला जाता है तो A के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. So जिसको हम येलो से हाईलाइट कर रहे हैं. So this is what it will become. Putting all these values, so 40 multiplied by 24 upon 50, so it would be 10 5s ja, 10 4s ja, so that is 96 upon 5, and when converted into decimal that would be 19.2 kilometer per hour. So if you observe the formula, the option is B, right? So option B is correct for question number 3. So this was the solution. Now let's move to the question number 4. In question number 4 we are provided that the average weight of 6 boys gets increased by 5 kg if a boy with weight 20 kg is replaced by a new boy. So what is the weight of new boy? Okay, now as we already know, average weight, the formula for average weight is sum of
weights. In this case we have 6 boys, so we will write 6 boys. Sum of weights of 6 boys divided by total number of boys. टोटल नंबर ऑफ बॉयज़. सो क्योंकि हमारे को एवरेज वेट गिवन नहीं है, सो लेट इज जस्ट सपोज कि एवरेज वेट इज x. ओके, एंड सम ऑफ वेट्स ऑफ 6 बॉयज इज सम divided by total number of boys is 6. Okay, so this becomes our equation number 1. Now अब हमारे को गिवन है if okay, increase by 5 kg, the average gets increased by 5 kg. So in the second case जो x है, अगर हमारे पास एक बॉय को रिप्लेस कर दिया जाता है, हमारे पास इनिशियली 6 बॉयज थे, लेट द बॉयज बी दीज 6 बॉयज 4 5 6. इनमें से जिसको हम येलो से हाईलाइट कर रहे हैं, दिस बॉय, इसको रिमूव कर इसका वेट गिवन है कि इस वेट इज़ 20 kg. ठीक है, और इसको जब रिमूव कर किसी सेकंड थर्ड किसी पर्सन को इसकी जगह लेकर आया जाता है, तो व्हाट हैपेंस, इसका जो एवरेज है सभी का ओवरऑल वो 5 से इंक्रीज हो जाता है. सो लेट द न्यू एवरेज बी x plus 5. Okay, so putting all these values, x plus 5 is equal to sum of weights we don't know exactly, and total number of kids remain the 6. Okay, so it is जो 6 है डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. सो दैट वुड बी 6 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 5 इज इक्वल टू सम ऑफ वेट्स, एंड 6 multiplied by x is 6x plus 6 multiplied by 5 is 30. Okay, this is sum of weights. अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 थी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर करते हैं, जिसको हम ग्रीन से हाईलाइट कर रहे हैं अभी राइट नाउ. ओके, सो एज यू कैन सी इन इक्वेशन नंबर 1 द सम ऑफ वेट्स वाज 6x. अगर हम सम को मल्टीप्लाई 6 को दूसरी साइड ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट वुड बी सम इज इक्वल टू 6x. और यहाँ पर जो इक्वेशन सेकंड है उसमें जो सम ऑफ वेट्स आया 6x प्लस 30 आया है. इट मीन्स जो हमने 20 kg का बॉय रिप्लेस किया था उसके अलावा 30 kg और ऐड हो रहा है. इट मीन्स कि जो नया बच्चा है उसका उस नए बच्चे का वेट कितना है, 20 प्लस 30 kg. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 50 kg is the weight. So this is our answer, option number B. Now moving on to question number 5. In question number 5 we are provided a table was purchased at rupees 1000. Okay, so purchase is always cost price. This is 1000 and sold at 800. महंगा खरीदा गया है और सस्ता बेचा गया है. इट मीन्स लॉस हो गया है. सो लॉस का फॉर्मूला होता है CP minus SP is equal to 1000 minus 800 is equal to 200 rupees. Alright, so we have to find out the loss percent. Perfect. So loss percent का फॉर्मूला होता है loss upon CP multiplied by 100 and the loss is 200. The CP is 1000 multiplied by 100. So cancel कर देंगे. So 2 zeros get cancelled by 2 0, 1 0 by 1 0. So the final answer is 20%. So this is our answer according to question. Option number C is correct. So C is correct. All right. So this is our answer. In question number 6, we are provided a milkman has 2 cans of milk containing 75 liters and 45 liters of milk respectively. So what will be the measure of largest vessel that can measure the milk of the 2 cans exactly? So as you can see, this is a question of HCF. So what we have to find out is, we have to find out the HCF of 75 and 45. वो वेट वेसल का वो वॉल्यूम जो इन दोनों का एग्जैक्टली अगर हमारे को मेजर कर सकें, तो व्हाट विल डू इज कि 75 45 to find out its HCF we will divide it by 5. So 15 ja 9 ja and then 3 5 ja
3 जा. So since there only 5 और जो 3 है ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं, so that would be the HCF. 5 3 जा 15. So 15 is the exact answer. 15 liters is the volume of the can that can measure exactly. So option number C is correct. Option number C. Now moving on to question number 7. In question number 7 we are provided what is the least multiple of 23 which when divided by 18, 21, 24 leaves remainder 7, 10 and 13 respectively. अब इस क्वेश्चन में आप देखिएगा एग्जामिनर बहुत बार आपको अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देता है सो दैट टू कंफ्यूज यू. द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23. So whichever is the answer, it is completely divisible by 23. Okay, so this is our first observation, that the answer is completely divisible by 23. ये हमारे को कैसे पता चला? Because it is least multiple of 23. Okay, now so what we will do is कि we will try to just divide all these options by 23 and whichever gets completely divided, which means कि जब हम 23 से डिवाइड करेंगे अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है, इट मीन्स इट इज completely divisible. So let us start with A. So we have 1240. 1240 when divided by 23, so 5 जा 115 minus 9 0 3 जा 69. So since we have a remainder 21, so this is not possible. Then we move on to B part. In B part it is 3013. So 23 से डिवाइड करेंगे 1 जा 7 1 3 जा 69, remainder is 2. We bring 3, then 23 1 जा 23. Perfect. So it is completely divisible since remainder is 0. So option number B is correct. So 131 is the number जिसको हम 18, 21 और 24 से जब डिवाइड करते हैं then you can even confirm it. अगर हम 18 से 131 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 रहेगा. 21 से अगर करते हैं तो रिमाइंडर वुड बी 10 एंड 24 से करते हैं देन द रिमाइंडर वुड बी 13. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7. सो दिस इज आवर आंसर. Moving on to question number 8. In question number 8 we are provided that 4 clocks ring at the time intervals of 6 second, 8 second, 12 second and 18 second respectively. So what we are given is कि let us suppose कि this is the starting point and the starting point is 12 am. 12 am पर rings bell करना start करती हैं, so they have starting point and their time interval is 6 second, 8 second, 12 second and 18 second. So if they ring together at 12 am, then how many times will they ring together within a span of 6 minutes? कि 6 minutes में वो कितनी बार, what will be the exact times वो जब चारों एक साथ ring कर रहे होंगे. Alright, so what we have to do is we have to find out the HCF and then 6 minutes के अंदर कितनी बार होगा, sorry LCM find out करेंगे and then we'll find out कि 6 minutes which means कि 60 into 6 equal to 360 seconds में वो कितनी बार रिंग करते हैं. Now we have 6, 8, 12, 18. So divided by 4, 2 जा 3 जा 18 divided by 3, 2 जा 1 जा 6 जा, then we will divide it by 2 जा and then we will multiply all of them to find out LCM. 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 3. So their LCM is 4 3 जा 12, 2 जा 24, 3 जा 72. So now 360 seconds में हमारे को फाइंड आउट करना है कि वो कितनी बार एक साथ रिंग करेंगे. सो 360 डिवाइडेड बाई 72. ओके एंड 12 6 जा 12 3 जा 0 6 5 जा, so 5 times. So according to question, option number D is correct. 5 times is the correct answer. Now moving on to question number 9. In question number 9 we are provided that the LCM of two numbers is
28 times of their HCF. Let the two numbers be A and B. Let the two numbers be capital A and capital B. Now it has been provided that the LCM of two numbers is 28 times. So in mathematics, times means multiplied. So LCM is equal to 28 times of HCF. Okay, so this is equation first. Also we are provided that the sum of their LCM and HCF is 1740. So HCF plus LCM is equal to 1740. So if one means कि either हम A को 240 मान सकते हैं या फिर B को 240 मान सकते हैं. So let us just suppose कि हम A को 240 मान लेते हैं. So A is equal to 240. So we have to find out the value of B. Okay. So you have to observe carefully कि हम इस क्वेश्चन को अभी कैसे करने वाले हैं. Now we know. So putting the value of equation 1 जिसको हम येलो से हाईलाइट कर रहे हैं, इसको इक्वेशन इसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो इट वुड बिकम HCF प्लस LCM की वैल्यू है 28 टाइम्स ऑफ HCF एंड द रिलेशनशिप बिटवीन 28 एंड HCF विच इज ए वेरिएबल इज मल्टीप्लिकेशन. सो 28 HCF इज इक्वल टू 1740. सो HCF के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं, राइट. सो 1 HCF प्लस 28 HCF इज इक्वल टू 29 HCF and their relationship is multiplication is equal to 1740. Now HCF would become 1740 by 29 and upon division 29 6 right. Okay, so 60. So HCF जो दोनों नंबर्स का आ गया है वो आ गया 60. So this is equation number 3. This is equation number 2. Okay, so ये वैल्यू जो हम HCF में पुट करते हैं, HCF और LCM की जो इक्वेशन नंबर 1 थी, सो LCM वुड बी जो हमारे पास आ गया है यहाँ पर. ओके, सो यूजिंग फॉर्मूला वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ HCF with LCM is equal to the product of two numbers. So we know HCF is already given. We know the value of HCF and LCM की जो वैल्यू है that is 28 times of HCF. A की वैल्यू जो है that is 240 and B की वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है. Now HCF की वैल्यू is 60. As you can see, I just highlighted it with yellow. So 60 multiplied by 28 multiplied by 60 is equal to 240 multiplied by B. So 240 B के साथ मल्टीप्लिकेशन में है. So when taken to the LHS ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा. So 60 multiplied by 28 multiplied by 60 divided by 240 is equal to B. So 60 1 जा 60, 64 जा 240, 4 1 जा 15 जा. So 28 multiplied by 15 is our answer and upon calculation the value of B is 420. So perfect. So 420 अगर हम देखते हैं, so it is option number A. Option number A is correct answer for question number 9. So wonderful. Now moving forward, in question number 10. In question number 10 we have Ashu takes 12 days to complete the work. The same question हमने जो previous YouTube वीडियो जो हमारी 2020 के सॉल्यूशन में डाली थी, जिसको हम इसको टाइम एंड वर्क पर क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड टॉपिक पर क्वेश्चन है. सो 2020 का आप जरूर देख लीजिएगा वीडियो, उसमें सेम क्वेश्चन हमारे पास है. सो आशु टेक्स, सो वी हैव आशु, वर्क डन बाय आशु 12 days to complete the work. Parnav takes 10 days to complete the same work. Ashu, Parnav and Ramu. So there are 3 men. So they have to complete the work. Now according to question we are provided. So since Ashu completes the same work in 12 days, so work done by him in 1 day. 1 day में कितना होगा? Work done by Ashu in 1 day is equal to 1/12 of total. अगर वो 12 डेज में कंप्लीट पूरा काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? टोटल जो काम है उसका 1/12 पोर्शन, राइट. ओके, एंड वर्क डन बाय Pranav in 1 day would be, since he completes total work in 10 days, so 1/10 of total.
नाउ क्योंकि हमारे को इनिशियल समझ में आ गया, नाउ वी वुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो नाउ इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट द टोटल वर्क, if all of three work together, then Ashu, Pranav and Ramu takes 5 days to complete the work. So how much portion of the work would be completed by them in one day? So if they work together, so work done in one day by all three of them in one day is equal to 1 by 5th of total. Correct? Now हमारे को find out क्या करना है? We have to find out say that how many days will Ramu take to complete the same work. All right. So we have, this is yellow highlighted, first is given, this is second, and work done by all three of them. ये हमारे को given है. Now using all of these, so we will make an equation, and the equation is time taken by Ramu alone is equal to 1 by 5 माइनस वो जो अकेले दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं उसको ऐड करते हैं, और जो टोटल तीनों मिलकर एक दिन में कर सकते हैं उसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग. सो 1 by 5 माइनस 1 by 12 प्लस 1 by 10. ऑल राइट. सो अकॉर्डिंग टू यूजिंग वी बोर्डमास रूल पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम. सो ब्रैकेट को सोल्व करते हैं. सो इट वुड बी 1 by 5 माइनस, सो 12 10 जा 120, 10 1 जा 10 प्लस 12 1 जा 12. ओके. सो 1 by 5 माइनस 22 अपॉन 120. ऑल राइट. नाउ इसका सॉल्यूशन हम आगे करते हैं. सो 125 जा 600, 121 जा 120 माइनस 22 5 जा 110. So it is 10 by 600. So time taken would be, time taken in days is equal to 600 upon 10 days. So upon simplification that would be 60. So if you observe the options, option number C is correct. C is our answer for question number 10. Alright, now let's resume with question number 11. In question number 11, we are provided that a student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56. It means कि 65 से multiply करना चाहिए था but multiply कर दिया 56 से. Okay. Now let's start with question number 11. A student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56. It means कि actually multiply करना चाहिए था 56 से but multiply कर दिया 65 से. So by how much was his answer greater than the correct answer? All right. So what we will do is basically उनका actual answer कितना आना चाहिए था? So एक्चुअली 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करना था. ओके. सो द डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 56 इज 9. सो व्हाट वी विल डू इज टू फाइंड आउट द आंसर कि जो करेक्ट आंसर उससे कितना ज़्यादा आंसर है. वी विल मल्टीप्लाई 7236 बाई 9 एंड अपॉन मल्टीप्लिकेशन इट इज 65,124. एंड इफ यू ऑब्जर्व ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर for question number 11. Now moving on to question number 12. In question number 12 we are provided, it is a question on V board mass and all of them are fractions. So in question number 12 let us just write it down. 1 divided by curly bracket 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 6 divided by bracket open bracket 3 by 4 minus 1 by 3 bracket close curly bracket. So basically we have three types of brackets: open bracket, close bracket and curly brackets. Now using V board mass rule, first of all we will be solving inner brackets. So inner brackets को solve करेंगे. So let me do it side wise calculation. Minus 1 by 3, so 4 3 is 12, 3 3 is 9, minus 4 1 is 4. So the answer is 5 by 12.
Okay, so putting on the value 1 divided by curly bracket 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 6 divided by 5 upon 12. नाउ जो कैप लग जाएगी वो लग जाएगी 1/6 डिवाइडेड बाई 5/12 पर। हम जब भी बोर्ड मास के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कैप लगा कर करते हैं। सो कैप से क्या होता है कि जो मिस्टेक्स हैं वो नहीं होती। फिर आपकी कर्ली ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/3 प्लस, नाउ व्हेन वी सॉल्व डिवीजन बिटवीन टू फ्रैक्शन, सो LHS को हम एज इट इज रखते हैं। LHS वुड बी 1/6, डिवीजन वुड बिकम मल्टीप्लाई एंड 5/2 का हो जाएगा रिवर्स, सो दैट वुड बिकम 12/5, curly bracket close. So 6 1 ja 6 2 ja. So the final fraction is 2/5. So 1 divided by 1/2 plus 1/3 plus 2/5. Now फिर से हम एक बार साइड वाइज कैलकुलेशन करते हैं। तीनों फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए व्हाट विल डू इज कि हम एक बार ग्रुपिंग बनाकर कर देते हैं इनको सॉल्व। सो दैट वुड बी इजी। हम जिसको ग्रीन से हाईलाइट कर रहे हैं फर्स्ट इन दोनों का कर देते हैं एंड द आंसर वुड बी, सो 3 2 ja 6, 3 1 ja 3 plus 2 1 ja 2 plus 2/5. So now this is like 5/6 plus 2/5. So 6 5 ja 30, 5 5 ja 25 plus 6 2 ja 12, and the answer is 37/30. So after solving the complete bracket, the answer is 1 divided by 37/30. So as you know, I just told you LHS वुड रिमेन एज इट इज। जब भी दो फ्रैक्शंस का, क्योंकि 1 के डिवीजन में कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं इसको। सो 1/1 वुड रिमेन एज इट इज, डिवीजन का बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन एंड 37/30 वुड गेट रिवर्स एज 30/37. So the answer is 30/37, and if you observe carefully, option number A is correct. So option number A is correct, right? Now in question number 13 we are provided with a figure. क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास फिगर है एंड फिगर के अंदर हमारे को बताना है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। नाउ परफेक्ट, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल क्विकली कैलकुलेट। दिस इज 4 plus 1 is 5 plus 4 is 9 सेंटीमीटर प्लस, जिसको हमने ब्लू से हाईलाइट किया है 0.5 plus 0.5 is 1 plus 2.5 plus 2.5 is 5. So its answer is 15 centimeter and option is A. For 13th question, option number A is correct answer. In question number 14 we are provided a floor is 5 meter long and 4 meter wide. Also a figure is also given in question number 14. So we will draw our own figure in question number 14. So let us just suppose that this is our figure. Since its length is 5 meters, so it has to be a rectangle. Okay, so let us name it ABCD, and the length is 5 meter of rectangular floor, and this is 4 meter. A square carpet of side 3 meter. As you know, the property of square is that all sides are equal. So a square carpet, so 3 meter by 3 meter, this is laid on the floor. So ये floor जो है उसके अंदर इसको ले किया गया है. So this is the carpet, 3 meter by 3 meter. So we will fill it with green color. So green color से जिसको fill कर दिया, this is the carpet जो rectangular floor पर lay down किया गया. Now find the area of the floor which is not carpeted. Now as you can see in the figure, जिसको हम अभी yellow से highlight कर रहे हैं. So this is the figure जो अभी नहीं किया गया है highlight. जो yellow से highlight कर रहे हैं हम, ये एरिया जो है हमारे को बताना है. सो व्हाट वी विल डू इज कि एरिया नॉट कार्पेटेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर. सो रेक्टेंगल इज द फ्लोर, राइट? रेक्टेंगल इज द फ्लोर. आई विल राइट इट अबव, एंड एरिया ऑफ कार्पेट, एंड द कार्पेट इज a square. So I will write it down in a bracket. Now, so area of rectangle would be length into breadth, which is 5 into 4 is 20, minus area of carpet is 3 multiplied by 3, so 9, and the unit is meter square. So correct answer is 11 meter square. So option number C is correct option for question number 14. In question number 15 we are provided, ऐसे क्वेश्चंस में आपको फिगर बना लेना अच्छा रहता है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 14 में बनाए. इट इज़ रेदर इजी.
फिगर्स हमारे को लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन में गलती होने से बचाते हैं. In question number 15, cost of a dozen pens, dozen means 12, is 180 and the cost of 8 ball pens. Okay, so एग्जामिनर ने आपकी जो स्किल्स है उनको टेस्ट करने के लिए क्या किया है, 8 ball pens and just pens. So ये डिफरेंस दिया है. Now, the ratio of the cost of a pen to the cost of a ball pen. ठीक है. So this question is on unitary method. We have to find out the ratio of cost of a. A means 1 pen to the cost of a, again 1 ball pen. So we'll quickly do it. In question number 15, since cost of 12 pen is equal to 180, dozen means 12 pen, so therefore cost of 1 pen is equal to rupees 180 upon 12, which comes out to be rupees 15. Perfect. Now for a ball pen also, since cost of 8 ball pens is equal to, we are provided 56 rupees 56, so therefore cost of 1 ball pen is equal to 56 divided by 8, which is rupees 7. Now आपके सामने ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है. सो यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ कॉस्ट अ पेन divided by a ball pen cost. So a pen costs rupees 15 and ball pen costs 7 rupees. So according to this is 15 ratio 7. A option is correct for question number 15. Chalo, wonderful. Now in question number 16. In question number 16 we are provided a truck requires 108 liters of diesel for covering a distance of 594 kilometers. How much diesel would be required by the truck to cover a distance of 1650 km? जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिला जाए, you can call it a question on unitary method. You can even call it a question on like distance. Not exactly, but it is related to distance. So unitary method के concepts हम यूज करेंगे. आपको क्या देखना है कि दो बार क्या गिवन है. यहाँ पर दो बार जो यूनिट्स गिवन है, देखिए यूनिट एक तो है लीटर, एक है किलोमीटर और एक है फिर से किलोमीटर. जो दो बार यूनिट्स गिवन होती है उनको हम LHS में लिखते हैं. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू डू इट. सो सिंस टू कवर 594 किलोमीटर डीजल रिक्वायर्ड, DIESEL required is equal to 108 liters. Okay, so capital L will be sufficient. Now therefore in unitary method the second step is always unitary means 1 to cover 1 किलोमीटर. अब देखिए 1 किलोमीटर कवर करने में काफ़ी कम लीटर चाहिएगा ना डीजल का. सो 108 और जो सेकेंड स्टेप में जो 594 किलोमीटर दैट विल गो इन डिनोमिनेटर. एंड इन द थर्ड स्टेप अगेन therefore to cover distance is 1650 kilometer, diesel required is equal to 108 by 594. 1 किलोमीटर के लिए चाहिए था, so 1650 will get multiplied in the numerator, so 1650. Now upon solving you will see, so they are divided by 4. No, so we will divide them by 3. Okay, so 8 plus 1 is 9, 5 plus 4 9 plus 9 is 18, so it comes in the table of 3. 3 3 is 9, 3 6 is 18, 3 1 is 2, 29, 3 9 is 27, 2 3 8 is. Alright, now upon solving, further solving, we have just solved it. The answer would be 300 liters. So 300 liters जो है, so that is the exact answer for this question. So 300 liters means option number C is the correct answer. So C is the correct answer. Now moving on to the next question, which is question number 17. In question number 17 we are provided question number 17 that the SI own rupees 5000 at the rate of this percent for a period of this years is. Okay, so we will quickly write down what we are provided. So P is equal to principal is equal to rupees 5000, the time is 3 years and the rate of interest is given in mixed fraction, so we will convert it into proper. Okay, so 15 by 2%. Now using the formula for SI is equal to PRT upon 100. So placing these values we have
5000 multiplied by 3 multiplied by 15 upon 2 multiplied by 100. So upon solving, it gets to 50, 25 ja 25, 75 multiplied by 15 is equal to 1125 rupees, which is option number D. So option number D is correct. Now in next question, question number 18, we have the angles of a triangle are in the ratio 1:2:3. So अगर आप हमने जो 2020 ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स की वीडियो जो सॉल्व की थी उसमें आप देखेंगे वेरी सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन दैट एग्जाम. So the ratio of angles is 1:2:3. And if you remember, we had told you in the last video also, and now also we are about to tell you the angle sum property of a triangle. Angle sum property says कि the sum of all three angles in a triangle is 180 degree, right? So we have to find out अगर angles को हमारे को given है कि अगर ratio 1:2:3 है तो उसके angles क्या होंगे. So let the constant ratio be x degree. So the ratios become x degree, ratio 2x degree, ratio 3x degree. Now the sum of all three is 180 using angle sum property of a triangle using angle sum property. So x plus 2x plus 3x is equal to 180 degree. X plus 2x is 3x plus 3x is 6x. 6x is equal to 180 degree, which means kx is equal to 180 upon 6 is equal to 30 degree. Now putting all these values, x is equal to 30, 2x means 2 multiplied by x is equal to 60 degree, and 3x is equal to 3 multiplied by 30 is 90 degree. So if we correlate, option number A is correct option. For 18th question, option number A is correct. Now moving on to the next question, question number 19. In question number 19, we are provided that we have one number exceeds another number by 36. Okay, so अगर exceeds का meaning होता है बड़ा है. So in question number 19, we have let the two numbers be A and B, be A and B. So according to question, A is 36 more than B. So this becomes equation number 1, and the sum of two numbers is 48. So A plus B is equal to 48. ठीक है. So equation 1 की value equation 2 में put करते हैं. So we have to find out the value. The numbers are, इसकी value A की value यहाँ पर put करते हैं. So B plus 36 plus B is equal to 48. All right. So B plus B is 2B. 2b plus 36 is equal to 48. 36 को जब हम RHS में लेके जाएंगे तो इट विल बिकम माइनस 36. So 2b is equal to 48 minus 36 which is equal to 12. So 2 का और b का रिलेशनशिप कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन होता है. So is equal to 12. So b की वैल्यू when 2 taken to the RHS will go in denominator. 12 divided by 2 is equal to 6. So अगर b की वैल्यू अगर 6 है तो a की वैल्यू क्या होगी 6 plus 36. ये कहाँ से पता चला, हम जो रेड से आया येलो से हाईलाइट कर रहे हैं इसको. So that will be 42. So according to these, option number C is correct. For question number 19, option number C is correct. Now moving on to question number 20. In question number 20, we are provided that one of the following times, at which one of the following times is the angle between the hands of a clock exactly one straight angle. So straight angle means, straight angle का meaning होता है 180 degree. So straight angle कैसा होता है, if you see, either it is this one usually or a straight line this one. ये सही से नहीं बना है बट आप समझ लीजिए कि जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, जो एंगल होता है, सो 180 डिग्री होता है. नाउ by memory and by usual practice I am telling you, it would be option number D, 6 AM. 6 AM पर क्या होता है, जो हमारा this is like our hand and जो black से हम बना रहे हैं this is minute hand. So 6, this is 12, this is 3 and this is alright 9. Now so क्योंकि यहाँ पर
जो ये एंगल बना ये 180 डिग्री बना, सो इट इज़ पॉसिबल ओनली एट 6 AM. So option number D is correct. Now in question number 21, question number 21 में हमारे पास given है that we have to find out the smallest number which is divisible by 6, 12 and 18. जो तीन given numbers हैं they are 6, 12 and 18 और जो options हैं वो सभी इनसे बड़े हैं. It means it is a great hint कि हमारे को LCM find out करना है. Okay, so we can do either prime factorization और if you are experienced, अगर आपको अच्छे से आता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं. 6 1 जा 2 जा 3 जा. सिंस जो 1 2 3 इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वी विल जस्ट मल्टीप्लाई देम. सो द एलसीएम वुड बी 6 multiplied by 2 multiplied by 3 which is 36. So according to okay, so 36 is not an option but जो given options हैं उनमें से सबसे छोटा जो 36 का मल्टीपल होगा that would be the answer. So alright, option number A is divisible by 36 but it is not the smallest. 36 5 is 180. Perfect. So option number B. Option number B 180 is correct answer because 36 5 is 180 and 36 10 is 360. तो हमने यहाँ पर क्या करना है, we have examiner ने हमारे से पूछा था find the smallest number. So if you can see the smallest number, find the smallest number in 21. So this is wrong. Option number 180 का जो B है that is correct. Now moving on to question number 22. In question number 22, which one of the following measures of an angle can be those of an isosceles triangle? In an isosceles triangle, you know, two angles and opposite sides, any two. Actually, it would be any two opposite sides and any two opposite angles are equal. So that is the property of an isosceles triangle, equal. So now if you check very carefully, so option number A is directly, आप देखेंगे तो option number A is आपको correct नजर आएगा. उसका reason ये है कि see, आप हमारे पास दो एंगल्स हैं 90, 45. अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था 180 होना चाहिए सम. सो 90 का डबल कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो 180 प्लस 45 वो ज़्यादा हो जाएगा. सो हम क्या करते हैं 90 लेट द ट्राइंगल बी कॉल्ड ट्राइंगल PQR. सो हम अगर एंगल P को 90 मान लेते हैं सो एंगल Q और R 45 होंगे, राइट. 45 एंड एंगल R इज 45. तो इन सब का सम अगर 180 आ रहा है देन ऑप्शन ए ही हमारी जो कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर देगा. सो 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 180 विच इज ऑब्वियसली ट्रू. सो परफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 22. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 23. In question number 23, we are provided the length of a rectangle is 5 cm more than its breadth. Okay, so we'll quickly draw a figure. Let this be a rectangle. So let us call it ABCD. So AB and CD are the length, and length is 5 more than breadth. So this is our equation number 1. Okay, now if the perimeter of the rectangle is 50 cm, so P is equal to 50 cm, then what is the area? ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेडली पूछा जाता है हमारे से डिफरेंट एग्जाम्स में. इवन आप राष्ट्रीय स्कूल एग्जाम में देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे. सो यूजिंग द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर विच इज पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ. हम इक्वेशन 1 की वैल्यू जिसको हम येलो से हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पर प्लेस कर देंगे. इक्वेशन 1 की वैल्यू देखिए आप क्या बनेगा ये. सो 2 मल्टीप्लाइड बाई L की वैल्यू है 5 प्लस बी और प्लस बी पहले से है हमारे पास. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर इज 50. नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, LHS 50 is as it is 2, 5 plus B is 2B. So 5 plus 2B. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम जिसको हम अभी ग्रीन से हाईलाइट करने इसको सॉल्व करेंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कैसे होगा, first 2 will get multiplied with 5 and then after putting a plus sign in between it will get multiplied with 2b. So that would be 2 5s are 10 plus 2 2s are 4 and a variable b. Alright, and LHS 50 is as it is. Now जो 10 है एक constant इसको LHS में लेके जाएंगे to become minus 10. So 50 minus 10 is 40 is equal to 4b. 4k और b
b का रिलेशनशिप मल्टीप्लिकेशन है, सो b इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4 10. So the value of b is 10. Putting this value in, जो हमने येलो से हाईलाइट किया हुआ, तो l की वैल्यू आ गया 10 plus 5 is 15. Okay, so the unit is centimeter. Now here we are, so area would be length multiplied by breadth is equal to 15 multiplied by 10 which is equal to 150 centimeter square. Please make sure students कि आप जो units हैं उन पर ज़रूर से ध्यान दें. In this case unit is centimeter square. So option number A is correct for question number 23. Alright, now moving on to question number 24. Question number 24 is based on unitary method. In question number 24 we are given, ये जनरल जो हमारे लाइव बेस्ड क्वेश्चन है उनमें से है. 24 we are provided that 12 persons can finish a piece of work in 15 days. Okay, in how many days will the same work be completed by 20 persons? Now यूनिटरी मेथड में हमने आपको बताया था कि आपको यूनिट्स देखनी है कि कौन सी यूनिट दो बार गिवन है. सो आई विल जस्ट अंडरलाइन 12 persons, 15 days, 20 persons. So the units are person and the second unit is days. Okay, so जो दो बार गिवन होता है उसको हम LHS में लिखते हैं. Since 12 persons can complete the work in 15 days, therefore one person can complete the work. आप ये बताइए, जिस काम को करने में 12 persons को 15 days लगते हैं, एक आदमी को तो उस काम को फिनिश करने में बहुत सारे दिन लगने वाले हैं. यानी सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई, सो डेज, एंड इन द थर्ड स्टेप therefore 20 persons are there, so 20 persons will can complete the work in how many days? So 15 multiplied by 12, जितना एक आदमी जितने दिन में काम करता है उसका 20th टाइम लेस, यानी डिवाइडेड बाई 20. सो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 3 जा. So the answer would be 9 days. So we can see option number B is correct option for question number 24. So this is our correct answer. Now question number 25. Moving on to question number 25. In question number 25 we are provided the LCM of two prime numbers is a difference. Now one thing that you have to note is LCM is the keyword here and the second one is prime number. Okay, so I won't just discuss the options. हम डायरेक्टली एक बार क्या करते हैं, हम कोई भी अपनी तरफ से एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस सपोज कि वी हैव 5 and 7. 5 and 7 both are prime numbers. अगर हमारे को इनका LCM निकालना हो तो what it would be? So 5 7, since there is nothing common, so 1 is the only HCF of this number, so LCM निकालने के लिए क्या करेंगे हम, we will just multiply them. Now among options, option number B means product का basic meaning जो होता है, it is synonym for multiplication, so that is our correct option. In question number 24, B, multiplication is the correct option. Now moving on to question number 26. In question number 26 we are provided, okay, in a school of 1000 students, so total number of students is 1000 is equal to total number of students. ठीक है, गिवन को अगर आपने अच्छे से लिख दिया तो फिर आप आगे से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. 330 कम बाई बस. ओके, 330 कम बाई बस. सो बस से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं दैट इज 330. 400 कम बाई वॉकिंग की जो स्ट्रेंथ है दैट इज 400. एंड द रिमेनिंग मीन्स व्हाट, जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम बस एंड वॉकिंग. ओके, सो रिमेनिंग का मतलब हुआ, यू हैव टू बी वेरी थिंकेबल अबाउट इट कि जो आप जो कर रहे हैं अभी. सो टोटल माइनस वो बचे जो बस से आते हैं और वॉकिंग से आते हैं. ओके, सो टोटल इज 1000 माइनस, so their addition is 437730. Okay, so that would be 270. Now what is the percentage of students that do not ride the bus to school? Okay, so the remaining is 270. ये हमारे को पता चल गया. बस से आने वाले 330 बच्चे हैं, जो बस से नहीं आते हैं वो कौन कौन है,
जो वॉकिंग से आते हैं या फिर अदर रिमेनिंग मेथड से आते हैं, तो वो हो गए. सो दैट डू नॉट राइड द बस. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट राइड द बस, number of students who do not ride the bus is equal to what? 400 plus 270, which is basically equal to 670, and we have to tell the percentage. So percentage का meaning होगा यहाँ पर percentage of students, जिसको हम येलो से हाईलाइट कर रहे हैं, percentage of students who do not ride the bus. So percentage में क्या करेंगे, 670 और टोटल कितने बचे हैं 1000. किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग. सो 2 zeros गेट 2 zeros कट हो जाते हैं डिवीजन में 1010. सो द ऑप्शन इज 67%, विच इज ऑप्शन नंबर ए. ऑलराइट, नाउ इट वाज अ रेदर इजी क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था. 26th. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव 27th क्वेश्चन. इन 27th क्वेश्चन वी आर प्रोवाइडेड a train from station A to station B covers a distance of 616 km at a uniform speed of this. Okay, so the first is distance 616 km, and the second thing provided is speed. So speed of train is 102 km per hour, that is a uniform speed. Okay, it holds. Okay, this is a crucial word to notice. Holds का मतलब होता है रेस्ट. ठीक है, vehicles take rest after a long journey. It holds at station B for 1 hour before starting back. Okay, how much time will it take to complete the journey and reach back to station A? Now ये बहुत अच्छा किया एग्जामिनर ने आपको, ना लास्ट में ब्रैकेट में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी है, दैट इज फ्रॉम A to B एंड बैक. ओके, सो हमारे को क्या करना है, लेट मी ड्रॉ अ फिगर. सो दिस इज पॉइंट A. ओके, सो दिस इज पॉइंट A. पॉइंट A से हम जा रहे हैं B पर, ठीक है, और बी पर हम वी आर रेस्टिंग फॉर 1 hour, एंड वहाँ से फिर हम आ रहे हैं बी से ए पर वापस. सो दिस इज अ डायरेक्शनल डायग्राम जो हमने किया है. ए टू बी 1 hour रेस्ट, एंड देन फ्रॉम बी टू वापस ए पर आ रहे हैं. सो टोटल डिस्टेंस आप देखिए कितना कवर किया आपने, 616 किलोमीटर प्लस 616 किलोमीटर. सो दैट इज अ टोटल डिस्टेंस, राइट. एंड we had to find out how much time. Okay, so दोबारा डिस्टेंस लिखने की जरूरत भी नहीं थी, we had just to find out the time. अब क्या करेंगे, speed is equal to distance upon time. So the formula for time is equal to distance covered upon the speed of the vehicle. So 616 divided by 112 upon division, that would be 5.5 hours. Okay, so what I mean to say is कि A to B जो जर्नी गया इसमें टाइम लगा 5.5 आवर, B to A क्योंकि सेम स्पीड था तो 5.5 आवर, एंड 1 आवर का रेस्ट लिया. अब बच्चे क्या करेंगे, ये 1 आवर जो है इसको मिस करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, नहीं इसको मिस नहीं करना आपको. सो टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 5.5 आवर प्लस 1 आवर प्लस 5.5 आवर, एंड अपॉन आंसर इट वुड बी 12 आवर्स. 12 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट for question number 27. Wonderful. Moving on to question number 28. In question number 28 we have a table was sold at 16% loss. Okay, for 3360. जब 16% लॉस पर बेचा तब जो सेलिंग प्राइस है वो 3360 है. फाइंड द सीपी. कॉस्ट प्राइस मतलब उसको खरीदा कितने पर था. ओके, सो लॉस परसेंट आप हमेशा याद रखिएगा कि लॉस परसेंट इज मार्क विद एन परसेंटेज सिंबल, एंड लॉस जो होता है जस्ट लॉस वो रुपीज़ में होता है, एंड द एस पी इज 3360, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सी पी. सो वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला, हमने क्लास में आपको करवाया हुआ है. इसका जो फॉर्मूला है दैट इज सी पी इज इक्वल टू एस पी अपॉन में 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100. ओके, नाउ ये जो हैं वैल्यूज हम पुट कर देते हैं. सो सी पी की वैल्यू फाइंड आउट करें, दैट इज़ द वेरिएबल 3360 अपॉन में 1 माइनस 16 अपॉन 100. हमने आपको बताया किसी नंबर के नीचे डिनोमीटर कुछ नहीं है तो वी कैन जस्ट अप्लाई. सो हम यहाँ साइड में ब्रैकेट में, ओके दिस टाइम LHS में लगा देते हैं ब्रैकेट 1/1 माइनस 16 अपॉन 100.
सो 100 वन जा 100, इस 100 का यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 माइनस 16 वन जा 16, सो दैट वुड बी 84 अपॉन 100. ओके, सो सॉल्विंग दिस वैल्यूज CP इज इक्वल टू 3360 अपॉन में 84 बाई 100. ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड हमारा जो A अपॉन B बाई C जो हम आपके RHS में सोल्व करें राइट हैंड साइड में, सो उसमें क्या होता है, जो C होता है ये A के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, A मल्टीप्लाइड बाई C अपॉन B. नाउ क्विकली सॉल्विंग दिस 3360 अपॉन में 84 multiplied by 100. Okay, now upon solving you can just cut them with 4. 4 2 ja 8, 1 ja 4, 8 ja 32, 1 4 ja 0. Okay, and 21 4 ja is 84, 0. 40 multiplied by 100 is 4000 rupees. So that is the CP, and if you observe, option number A is correct option for 28th question. Now moving on to question number 29. In question number 29 we are provided that there are 17 rooms in a school. Okay, जैसे आपका स्कूल है वैसे कोई हमारे पास स्कूल है क्वेश्चन में. सो स्कूल के अंदर लेट अस सपोज दिस इज द स्कूल और इसके अंदर टोटल जो नंबर ऑफ रूम्स हैं दैट इज 17 रूम्स. सो वी विल क्विकली 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. देयर आर 17 रूम्स. ओके, 17 रूम्स हैं और एवरी रूम हैज़ 2 फैंस. ओके, सो दिस इज़ लाइक अ सैम्पल रूम. मैं इसको एक बड़ा सैम्पल बना देता हूँ एंड वी हैव 2 फैंस. ठीक है, सो X रिप्रेजेंट्स, ओके नो, F रिप्रेजेंट्स अ फैन, so this is a fan. Okay, also we have 4 LED bulbs, so these are 4 LED bulbs. ठीक है, how many switches are required for the school if every fan requires a switch? Okay, so 2 fans हैं एक रूम के अंदर, so उनके लिए नंबर ऑफ स्विच कितने चाहिए? 2 स्विच, and 1 switch is required for every 2 bulbs. I mean to say ये दोनों बल्ब्स हैं आपस में एक ही वायर से कनेक्टेड हैं. सो एक स्विच से 2 लाइट्स ऑन होती हैं, जैसा कि हमारे यूजुअली बहुत बार कमर्शियल या होम सेटअप में होता है. सो एक स्विच से 2 बटन, सॉरी आई मीन टू से एक स्विच से 2 बल्ब LED बल्ब्स ऑन होते हैं. तो फॉर 4 LED बल्ब्स आपको कितने स्विचेस चाहिए? सो 2 स्विचेस. ओके, सो पर रूम में हमारे को कितना स्विच मिल गया? 4 स्विच. Okay, and how many room we had in the school? 17 rooms. So 17 multiplied by 4 is equal to 68. So 68 हमारे को switches नहीं है, so option number B is correct. 29 का option number B. Now moving on to question number 30. In question number 30 we are the product of 2 decimal numbers is 12.194. Okay, if one of them is this, what is the other number? It is a rather easy question based on number system. So लेट द नंबर्स बी A एंड B. ठीक है, अगर प्रोडक्ट का मीनिंग बात करें तो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 12.194 एंड वन ऑफ देम इज गिवन टू बी A इज इक्वल टू 4.69. ठीक है, सो वैल्यू जो A की है जिसको हम येलो से हाईलाइट करें, इसको हम A की जगह यहाँ पर पुट कर देते हैं. सो इट वुड बी 4.69 मल्टीप्लाइड बाई B इज इक्वल टू 12.194. नाउ जो B की वैल्यू है ये देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन 4.69 एंड B इज मल्टीप्लिकेशन. सो जब RHS में जाएगा राइट हैंड साइड में तो इट विल गेट इन डिवीजन 4.69. हम सबसे पहले डेसिमल्स को कैंसिल करते हैं. सो 100 कैंसिल किया तो 1000. नाउ सो 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल एंड 12.194 डिवाइडेड बाई 4.69. ओके, ठीक है, सो 2 जा इज इक्वल टू 0.839 माइनस करेंगे, सो दैट वुड बी 4.182. और हम क्योंकि डायरेक्ट है छोटा है सो पॉइंट लगाए तो 0 एंड दैट वुड बी, सो 2 पॉइंट अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऑप्शन नंबर बी इज द ओनली ऑप्शन. सो परफेक्ट, सो हम डायरेक्टली 6 कर देते हैं. ऑप्शन नंबर बी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन. Wonderful. So
30th question, B is the correct option. Now moving on to next question. In question number 31 we have Rahul purchases a chair. So Rahul purchases a chair for 600 and uses 200 for repairs. उन्होंने जो चेयर परचेज की उसमें 200 रुपीज़ परचेज में जो है परचेज करने के बाद खर्चा किया. नाउ परचेज कॉस्ट इज इक्वल टू ऑफ चेयर ₹600. ठीक है. एंड द रिपेयर कॉस्ट इज ₹200. इट मीन्स एग्जामिनर ने बड़ा क्लेवरली हमारे को ये हिंट भी दे दिया है और फेलियर की तरफ भी इशारा कर दिया है. वो क्या है कि इसका सीपी क्या होगा. आपने जितने का खरीदा और रिपेयर कॉस्ट किया तो टोटल सीपी बन जाता है फिर इन दोनों का एडिशन. सो दैट वुड बी 800 रुपीज़. ओके. एंड द सेलिंग प्राइस इज 1000 रुपीज़. हमने क्या किया, सस्ता खरीदा और महंगा बेच दिया है. इट मीन्स फ़ायदा प्रॉफिट हो गया. 1000 minus 800 is equal to ₹200. ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट. सो इट इज़ रेदर इजी क्वेश्चन. प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला होता है हमारे पास. प्रॉफिट हमेशा जो प्रॉफिट होता है वो जिस कीमत पर ख़रीदा गया है यानी सीपी उस पर होता है. आप बहुत ज़्यादा महंगा खरीद कर फिर आप उसको ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं बेच सकते उसको. प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹200 अपॉन में सीपी इज 800 मल्टीप्लाइड बाई 100. 200 1 जा 4 जा 4 1 जा 25 जा. सो आवर आंसर इज 25%. 31 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी. 31 का सी ऑप्शन इज करेक्ट. वंडरफुल. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32. In 32 we have that the temperature dropped 15 degrees Celsius in last 30 days. Okay. Statement based question है. If the rate of temperature drop remains the same, जिस स्पीड से टेम्परेचर जो है डाउन जा रहा है, हाउ मेनी डिग्रीज वुड विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस. अगर आप मेंटल कैलकुलेशन में करेंगे तो सामने बिल्कुल आंसर रखा हुआ है, वो है 5. लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ. सो टेम्परेचर ड्रॉप ड्रॉप का मतलब होता है कम होना. ओके. सो कितना कम हुआ, 15 डिग्रीज इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज. सो आप कैलकुलेट करेंगे कि 1 डिग्री कितने दिन में कम हो रहा है. सो 30 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 2 डेज. यानी हर 2 दिन के अंदर जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री कम हो रहा है. एंड एग्जामिनर ने हमारे को कहा है कि नेक्स्ट 10 डेज में आपको बताना है. सो 10 डेज में कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 डिग्री. सो 5 डिग्री कम होगा यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 32. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. इन क्वेश्चन नंबर 33 वी हैव ओके. इन क्वेश्चन नंबर 33 okay, so from a basket of mangoes when counted in twos there was one extra. Okay, now इसको हम देखिए कैसे लिखते हैं. डिवाइडेड बाई 2, when a number is divided by 2, extra means remainder. Okay, so remainder is 1. Okay, when counted in threes, so when the number is divided by 3, so I will write the same as above symbol. This is same as above symbol जो अभी हमने किया है. The remainder is 2. When it is divided by 4, the remainder is 3. When divided by 5, the remainder is 4. And when counted in 6, the remainder is 5. And when counted in 7s, 7 ja, the remainder is 0. Now it is a very perfect hint. हमारा जो क्वेश्चन है when counted in 7, remainder is 0. अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आता है, it means what? It means कि it is perfectly divisible by the number. In this case it is 7. perfectly divisible है. It means अब हम हमारे पास जो 4 ऑप्शन उनको क्विकली एक बार देख लेते हैं. सो ऑप्शन नंबर ए इज 119 when divided by 7. 7 1 जा 7. हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं. सो 4 इज रिमाइंडर, 49 7 7 जा.
सो दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आ गया है इसके अंदर। बाकी को आप इवन आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। 110 को जब डिवाइड करेंगे सो 15.5, सो 15.5 वुड बी द आंसर, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है। 111 को 7 से करेंगे देन ऑल्सो रिमाइंडर बचेगा। 126 को भी 7 से करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। सो इन 33 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 34 वी हैव which of the following two digit numbers are when added to 27 get reverse। okay, it means कि हम 27 के अंदर इनमें से कौन सा नंबर जब ऐड करते हैं तो वो जो है रिवर्स हो जाता है। ओके, सो वी हैव ऑप्शन नंबर ए। 27 के अंदर जो हम ऐड करते हैं 27 को, सो जो गिवन ऑप्शन उसको मैं राउंड ऑफ ब्लैक में राउंड करेंगे हम, और 27 इज इक्वल टू 52। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर 27 जिसको राउंड में किया ब्लैक में, अगर इसका रिवर्स, तो रिवर्स क्या होता है 72। क्या रिवर्स 72 आया? 52 आया ना, 72 तो नहीं आया, इट मीन्स नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में 24 वैन एडिड टू 27। ओके, सो इट इज़ 51। ओके, सो राउंड ऑफ रिवर्स में होना क्या चाहिए था? इट हैड टू बी 42। क्या 42 आया? नो। ऑप्शन नंबर सी इज़ 47 when added to 27। ओके, सो जो आंसर आया वो आया हमारे पास 74, और होना क्या चाहिए था? 74 का रिवर्स होगा 74। परफेक्ट, सो मैच हो गया हमारा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट फॉर 34th क्वेश्चन। डी को करने की जरूरत नहीं है हमारे को, क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 इज द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ राधा इज 7:5। ओके, रेशियो मीन्स कि न्यूमरेटर में वी हैव इनकम एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है इन हिंदी इट इज कॉल्ड खर्च होना। इनकम मत का होता है जो आपका मंथली इनकम होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कमाना या फिर कमाई, और ये होता है खर्चा। ओके, उसका रेशियो गिवन है हमारा 7/5। ओके, ठीक है। सो इस इक्वेशन को हम एक बार अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। देखिए, सो इनकम वुड बी, जो एक्सपेंडिचर है आप इसको ना एज ए वेरिएबल ट्रीट करो, ठीक है। मतलब ये नहीं सोचना कि हमने अभी जो करने वाले हैं वो कैसे होगा, ये मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेंडिचर हो गया। कैसे? एक्सपेंडिचर जो LHS के डिनोमिनेटर में था, RHS के न्यूमिनेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ओके, आगे क्या कहा है हमारे को? इफ शी सेव्स 2000 अ मंथ व्हाट इज हर एनुअल इनकम। ओके, सो मंथली जो सेविंग है दैट इज 2000 अ मंथ, बट इन्होंने जो पूछा है वो पूछा है कि एनुअल इनकम क्या है। ठीक है, हमारे को दे दिया इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। ठीक है, हमारे पास रेडी फॉर्मूला होता है, हम उससे करेंगे। देखिए, सेविंग्स जो मंथली हैं दैट इज 2000, सो सेविंग्स पर एनम क्या होंगी? दैट वुड बी, जो मंथली है उसका 12 टाइम्स कर देंगे हम। सो 12 मल्टीप्लाइड बाई 2000 इज इक्वल टू 24,000। इसका मतलब राधा जो है वो एक साल का कंप्लीट 24,000 बचा लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो सेविंग्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सेविंग्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सेविंग्स इज इक्वल टू टोटल इनकम, आप कितना पैसा कमाते हैं, माइनस टोटल खर्च कितना करते हैं, एक्सपेंडिचर। उसके बाद जो आपका बचता है वो होता है आपका सेविंग्स, जिसको हम येलो से हाईलाइट करें। ठीक है, सो सेविंग्स जो है हमारे पास, जिसको हमने येलो से हाईलाइट कर दिया है, और जिसको हम ग्रीन से हाईलाइट कर रहे हैं, ये हमारे पास इनकम का और एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप है। इन सभी को इसके अंदर हम पुट करेंगे वैल्यू। सो सेविंग्स इक्वल टू 24,000, टोटल इनकम का, इनकम एंड टोटल इनकम इट इज़ वन एंड द सेम, सो इट इज़ 7/5 टाइम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को हम जस्ट ई कर रहे हैं, माइनस टोटल एक्सपेंडिचर नहीं पता है तो ई रख दिया। जिसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ओके, अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। ये ई को आप सिर्फ वेरिएबल मान लेना, 7 जो है कॉन्स्टेंट है, ई एक वेरिएबल है। सो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 1 जा 5, 1 7 जा 7 के साथ ई है, 7 1 जा 7 ई, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई ई, ये जो हम ओके इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन है, ये यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, सो 5e। ओके, सो दैट वुड बी
7e माइनस 2e, 7e माइनस 5e इज इक्वल टू 2e डिवाइडेड बाई 5, और जो LHS में दैट इज़ 24,000, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1। ठीक है, अब जो 5 है जिसको हम ग्रीन से हाईलाइट कर रहे हैं डिनोमिनेटर में है, दूसरे साइड जाकर LHS में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई ई। हमने 2 के और ई के बीच में मल्टीप्लिकेशन क्यों लिखा? क्योंकि 2 इज अ कांस्टेंट एंड ई इज ए वेरिएबल। ई का मतलब हमने शॉर्ट फॉर्म किसके लिए लिखा था? टोटल एक्सपेंडिचर के लिए। ठीक है, नाउ इट इज़ रेदर इजी, हम जल्दी से एक बार रख देते हैं 2 की रिलेशनशिप जो कि हम ओके येलो से हाईलाइट कर रहे हैं। सो 2 जब LHS में आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू ई। ठीक है, अब कट करते हैं, 2 1 जा 2 जा 12,000, 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू, सो टोटल एक्सपेंडिचर जो हमारा है वो है 60,000। नाउ ये हमारे पास अच्छा आ गया। और हमारे को क्या बताना था? एनुअल इनकम। ठीक है, सो जो इनकम का फॉर्मूला था जो हमने यहाँ पर ग्रीन से हाईलाइट किया, जिसको इक्वेशन नंबर 1, वहाँ पर हम रखते हैं 60,000। ठीक है, सो इनकम इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 60,000, दैट वुड बी 5 12 जा 0 0 0 12 7 जा 84, 84,000 इज आवर करेक्ट ऑप्शन, विच इज ऑप्शन नंबर डी। चलो वंडरफुल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 36 पर हम आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 36 वी हैव द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल लॉन इज 3:5। ठीक है, सो वी हैव, अगर आप नोटिस करेंगे तो लेंथ जो है वो कम है और ब्रेथ जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि 3:5 लेंथ डिवाइडेड और ब्रेथ का जो रेशियो है 3:5 है। इट इज़ टेक्निकली पॉसिबल कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 3:5 हो सकता है। इफ़ इट कॉस्ट 3,200 टू फेंस इट एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ अ मीटर। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस में जिनके अंदर अगर ऐसे दिया गया हो कि कॉस्टिंग एंड ₹2 अ मीटर, इट मीन्स इट इज़, फेंसिंग का मतलब क्या हुआ? फेंसिंग का मतलब होता है कांटेदार बाड़ लगाना, और वो कहाँ लगती है? वो पेरीमीटर यानी बाउंड्री के चारों ओर लगती है। तो यहाँ पर हमारी तरफ हिंट है कि हम पेरीमीटर निकाल लें। सो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट जो है वो कितना है फेंसिंग का, डिवाइडेड बाई कॉस्ट पर मीटर, कॉस्ट पर मीटर स्लैश हमने जो लगाया। ठीक है, कॉस्ट पर मीटर, सो टोटल कॉस्ट इज 3,200 रुपीज़ एंड द कॉस्ट पर मीटर इज 2 रुपीज़। सो अब जो पेरीमीटर होता है उसकी यूनिट मीटर होती है, सो इसको डिवाइड किया, 1600 मीटर आ गया। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। ओके, व्हाट वुड द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द लॉन एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर? ओके, स्क्वायर मीटर का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का मतलब होता है, हमारे को हिंट दे दी है यहाँ पर एग्जामिनर ने कि हमारे को बताना है एरिया, और एरिया का फिर हमारे को कॉस्टिंग निकालना है ₹10 पर स्क्वायर मीटर के। ठीक है, सो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है, और लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। आप देखिएगा कैसे। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। हमारे पास जो लेंथ की वैल्यू आई आप ऊपर ऑब्जर्व कीजिए, L इज इक्वल टू जो B है डिनोमिनेटर में है, सो 3 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में 5। इसको हम ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं, बाकी बाद में यूज करेंगे। ठीक है, सो दिस इज आवर लेंथ, और ये लेंथ जो फिर से हम यहाँ पर जो ग्रीन से हाईलाइट करें इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे। सो पेरीमीटर की वैल्यू जो येलो में थी दैट इज 1600, 2 मल्टीप्लाइड बाई L इज इक्वल टू 3B अपॉन 5 प्लस B के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ साइड में हम एक बार जल्दी से क्विकली कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, सो दैट विल बी हेल्पफुल बाद में करने से। बोर्ड मार्क्स लगाते हैं। सो 5 1 जा 5, 1 इंटू 3B इज इक्वल टू 3B प्लस 5 इंटू B इज 5B, सो 3B प्लस 5B इज 8B अपॉन 5। ये वैल्यू जो है हम ब्रैकेट में रख देते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड द रिलेशनशिप बिटवीन 8 एंड B इज मल्टीप्लीकेशन, सो B डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1600, और 1600 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो इट इज़ 1। ओके, सो 1600 जो 5 है ये न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो 2 और 8 विच इज 16 LHS के डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
और RHS में सिर्फ बच गया B। सो 16 1 जा 16, 1600 जा 1600 एंड 100 इंटू 5 इज 500। सो B की वैल्यू अगर 500 है तो आप देखिए जो ग्रीन से हाईलाइट किया उस फॉर्मूला में हम B की वैल्यू प्लेस करते हैं। सो हमारे पास है यहाँ पर L इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 500 डिवाइडेड बाई 5। एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं यहाँ, 5 1 जा एंड जो लेंथ आ गई हमारे पास वो आ गई है 300 मीटर। चलो, सो इम्पोर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी हमारे को एरिया निकालने के लिए वो आ चुकी है। सो एरिया का फॉर्मूला होता है फॉर ए रेक्टेंगल, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। सो 500 मल्टीप्लाइड बाई 300 इज इक्वल टू 15 and 4 zeros. Okay, so it is 1,50,000 मीटर स्क्वायर। बट क्या हमारे को सिर्फ एरिया पूछा गया है? इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द लॉन, लॉन का डेवलप करने का मतलब होता है उसको मेंटेन करना, उसको बनाना, जीरो से लेकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो लैंडस्केप होता है उसमें कन्वर्ट करना। सो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग इज इक्वल टू, विच इज इन रुपीज़, ये मीटर स्क्वायर में और वो रुपीज़ में होगा। सो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द लॉन इज इक्वल टू 1,50,000 multiplied by ₹10 is equal to ₹15 lakh. So 15 lakh has 5 zeros. So option number B is correct option in 36. So this was our answer. एग्जाम में आपको जल्दी करना है, मैंने बहुत डिटेल में बताया आपको, बट एग्जाम में आप इसको काफ़ी क्विकली कर सकते हो इसको क्वेश्चन को। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37. In question number 37 we have, in question number 37 it is A, B and C divide an amount amongst themselves. उनके पास कुछ पैसे हैं, amongst themselves आपस में बांट लें in the ratio A ratio B ratio C is equal to 4:7:9. ओके, ठीक है। लेट द रेशियो बी x, तो हम इसको अगर मान लीजिए कॉमन रेशियो जो है उसको x मान लेते हैं ताकि हम एक डायरेक्शन में चल सकें, 7x रेशियो 9x। ओके, सो इफ द बी शेयर इन द अमाउंट इज 2989, जो बी है पर्सन, इनका जो अमाउंट है 2989 है, तो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट? ए के पास जितने पैसे हैं प्लस बी के पास, इनका टोटल कितना होगा, ये हमारे से एग्जामिनर ने पूछा है। ठीक है, सो हमारे पास एक क्रूशियल हिंट है जिसको हम येलो से हाईलाइट कर रहे हैं। जो बी का शेयर है वो 2989 रुपीज़ है, सो हम यहाँ पर कर देंगे 7x इज इक्वल टू 2989। इक्वल टू क्यों रखा? क्योंकि जो 7x है रेशियो उसी के तो इक्वल है टोटल अमाउंट। सो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x का और 7 का मल्टीप्लिकेशन है तो RHS में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 7 4 जा 28, 1 2 जा 7 जा। ठीक है, सो x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 427। अब हम क्या करते हैं, फिर से एक बार राइट डाउन करते हैं, A रेशियो B रेशियो C। ठीक है, बीच में एक डिवाइजन लाइन, सो 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स की वैल्यू है 427। ठीक है, सो दैट इज 1708। बी की वैल्यू हमारे को पहले से पता है 2989, और जो सी की वैल्यू है दैट इज 9x। सो 9 मल्टीप्लाइड बाई 427 विच इज 3483। ओके, और हम इन सब का एडिशन कर देते हैं, सो टोटल कॉस्ट का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, दैट इज सो 1708 प्लस 2989 प्लस 3843, सो दैट इज इक्वल टू 0 4 5 and 8. So that is our answer. So according to options, that is option number B. Option number B is correct for question number 37. Now question number 38 पर चलते हैं हम लोग। In question number 38 we have question number 38. So in question number 38 we have the average age of a class of 40 students is 18 years. Okay, we already know the formula for average. Average का formula होता है sum of, in this case अगर age given है तो sum of age of students divided by total number of students. Total number of students. Okay, and we are provided when the teacher's age is also included, to calculate the average age becomes 19 years. What is the teacher's age? ठीक है, सो हमने आप जो वर्कशीट्स दी हुई हैं उनमें काफ़ी क्वेश्चन हम करते हैं, अकेडमी पर जो
बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं वो वर्कशीट जो हैं उनके अंदर। ओके, सो नाउ हम क्विकली इस क्वेश्चन को करते हैं। सो एवरेज इज 18 ईयर्स, सम ऑफ एजेस नहीं पता है हमारे को, स्टूडेंट्स की बात करें हम सिर्फ, टीचर जब इंक्लूड नहीं हुआ तब की, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 40। ओके, सो द सम ऑफ एज ऑफ स्टूडेंट्स ओनली वुड बी सम ऑफ स्टूडेंट्स को हम फर्स्ट यहाँ कर रहे हैं। सो 18 4 जा 720, सो दिस बिकम्स आवर ग्रीन वाला जो है, दिस बिकम्स आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ बाद में जब टीचर की एज जो है वो इंक्लूड कर दी तो एवरेज जो बन गया दैट वाज व्हेन टीचर इज इंक्लूडेड, व्हेन टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, जब उनकी एज इंक्लूड हो जाती है तो बन जाता है द एवरेज बिकम्स 19। तो जो ओरिजिनल जो फॉर्मूला जिसको हम येलो से हाईलाइट कर रहे हैं उसमें दोनों वैल्यूज हम उसको रख रहे हैं। 19 इज इक्वल टू सम ऑफ एजेस अब भी हमारे को नहीं पता है, नाउ क्या स्टूडेंट प्लस टीचर साथ में है टीचर, और जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने हुए, जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो 40 स्टूडेंट्स पहले से थे, अब टीचर साथ में आ गए तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्लास इज 41। तो सम वुड बी 19 मल्टीप्लाइड बाई 41 इज इक्वल टू सम ऑफ स्टूडेंट्स प्लस टीचर्स। ओके, सो सम इज 19 multiplied by 41 is 19 1 जा and 4 जा plus 1 77। सो दैट इज सम। हमारे को क्या बताना था, हम इसको ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं। टीचर की एज बतानी थी तो हम क्या करेंगे, जो टीचर के साथ वाली जो सम है 779 उसमें से माइनस कर देंगे 720 को, सो दैट कम्स आउट 59 एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो 38th क्वेश्चन में ए इज करेक्ट आंसर। Now, in question number 39, we have what is the greatest number which, when divides 3026 and 5053, leaves remainder 11 and 13 respectively. All right. So we have to find out a number which, when divides 3026 and 5053, जब इनको डिवाइड करेगा then it leaves remainder 11 and 13 respectively. जो नंबर completely divisible है उससे ये 3026 11 ज़्यादा है और 5053 13 ज़्यादा है। ये हमारे को कैसे पता चला, हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं अगर उसमें रिमाइंडर बचता है इट मीन्स द नंबर इज, जो रिमाइंडर है उससे उतना ही ज़्यादा है डिविडेंड। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सो नंबर्स वुड बी 3053 एंड 5040। सो हमारे को इन दो नंबर्स का क्या निकालना है, अगर आप ऑप्शंस को देखो तो HCF। सो विल फाइंड आउट द HCF 3015 5040। ऑल राइट, सो लेट्स डिवाइड इट बाई 5। 603 1008 when divided by 3 it is 201336 and when divided by 3 it is 67 and 112। all right, now if you observe carefully these are the only numbers that divide, उससे ज़्यादा 67 is a prime number, so आगे इनका possibility नहीं है। so HCF would be, HCF कौन सा नंबर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो कॉमन मीन्स जो दोनों को डिवाइड करें, सो दैट इज 5 multiplied by 3 multiplied by 3 that comes out to 45। 45 is option number C, so this is the correct option। now moving on to the next question, option number 40। question number 40, Ravi purchased a chair at 500, so the cost price of chair is rupees 500 and sold it for 550। okay, SP is 550, सस्ता खरीदा और महंगा बेच दिया है। what was his gain or loss percent? so it is a rather easy question from profit and loss topic। so profit is equal to SP minus CP, which is equal to 550 minus 500, so that comes out to be rupees 50। now using the formula for profit percent, we have already written this formula in earlier questions, so we won't write it right now। 50 अपॉन में CP 500 है
multiplied by 100. So those zeros cancel by those zero. 5 1 ja 5, 10%. So 10%, option number A is correct in 40. Moving on to question number 41. In question number 41, a certain distance is covered in 28 hours by walking with the speed of 5 km per hour. Okay, so we are provided with speed 5 km per hour for covering a certain distance, and the total time taken is 28 hours. Okay, full stop means information is over. Now, if the speed is increased by 2 km per hour, then in how much time the same distance would be covered? Please note, same distance is to be covered. Same distance cover करना है, तो using the formula for speed is equal to distance upon time. जो distance का formula होता है that would be speed multiplied by time. So that comes out to be 28 into 5. So 28 5 जो होता है 140. So 140 किलोमीटर वो डिस्टेंस आ गया जो हमारे को कवर करना है अगर जो स्पीड है वो बढ़ा दी जाए 2 किलोमीटर पर आवर से. सो न्यू स्पीड is equal to, earlier speed was 5 km per hour, so 5 plus 2 is equal to 7 kmph, kilometer per hour, and the distance remains the same, so it is 140 km. And now using all these values we have time taken is equal to distance is 140 upon speed is 7, so 20 hours. 20 hours हम check करते हैं तो option number C is correct option for 41st question. 41. Now moving on to question number 42. In question number 42 we are provided a piece of wire 7 by 8 meters long broke into 2 pieces. Okay, that is suppose कि this is our wire और इसको यहाँ से कट कर दिया गया या टूट गया है. Let the original length was A, B, और जब कट हुआ तो ये P पॉइंट से कट हो गया तो टोटल जो दो टुकड़े हो गए हैं वो AP प्लस PB हो गया है. ओके, और जो AP प्लस PB है वो है 7 by 8 मीटर. इट मीन्स जो टोटल लेंथ है वायर की वो 7 by 8 मीटर है. ओके, इफ़ 1 मीटर वॉज 1 by 4 मीटर लॉन्ग. ओके, लेट अस सपोज कि AP जो टूटा है ये 1 by 4 मीटर है. ओके, जो एक टुकड़ा है ये वाला ये 1 by 4 मीटर है. सो वी हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अदर वायर. सो आप पिक्चर से जो सिंबल है उससे भी आप देख सकते हो कि PB की लेंथ क्या है टोटल AB में से, क्योंकि हमारे को ओके PB निकालना है. सो AB माइनस टोटल लेंथ में से जो ग्रीन वाला पोर्शन है उसको निकाल दें, यानी 7 by 8 माइनस 1 by 4 निकाल दें तो हमारा जो लेंथ निकलेगा दैट वुड बी द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग वायर PB. सो 8 4 जा 32, 4 7 जा 28 माइनस 8 1 जा 8. सो दैट गेट्स टू 20 by 32. अब हमारे पास ऑप्शंस में तो है नहीं तो इट मीन्स हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सो PB इज इक्वल टू 20 by 32 विथ when divided by 2 in the numerator and denominator gets to 10 by 16, which for upon further division gets to 5 upon 8. 5 upon 8 meter is option number B. So 42 का option number B is correct answer. Now moving on to question 43. In question number 43 we have what is the missing series number in the sequence. Okay, so ये जो sequence है basically हमारे पास जो reasoning intelligence वर्बल एंड नॉन वर्बल जो पोर्शन है उनके अंदर हमारे पास सीरीज में हम बहुत डिटेल में आपको जो हमारे पास स्टडी नोट्स हैं उनमें भी आपको बताते हैं इसके ये चैप्टर. सो वही जो सेम पैटर्न निकालना इस क्वेश्चन में अगर आप पैटर्न निकालना सीख जाते हैं या पैटर्न निकाल लेते हैं देन इट बिकम्स रियली इजी फॉर यू टू सॉल्व. ओके, नाउ आप देखिए इसके अंदर हम कोशिश करते हैं. सो द रिलेशनशिप बिटवीन ओके, सो 2 to 10 इज +8, 10 to 18 इज +8, मतलब एक लिविंग वन एंड देन द नेक्स्ट वन, ऐसे हम पैटर्न कर रहे हैं. 18 + 8. ओके, सो अगर ये पैटर्न करेक्टली फॉलो हो रहा है तो यहाँ पर हम +8 करेंगे दैट वुड बी 34. सो 34 इज ऑप्शन नंबर B, दैट इज आवर करेक्ट आंसर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. हमने पैटर्न निकाला है +8 +8 +8. हाँ, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 44. इन क्वेश्चन नंबर 44 अगेन ये यूनिटरी मेथड, अगर आपने देखा होगा इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन यूनिटरी मेथड और प्रॉफिट एंड लॉस पर आ रहे हैं. जो चैप्टर जो है इसमें अगर आप कॉन्टिन्यूसली हमारे वीडियोस देखते रहेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट जो पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशन भी करेंगे, तो आप नोटिस कीजिएगा कि हर पेपर के अंदर कुछ पोर्शन से कुछ टॉपिक से चैप्टर से ज़्यादा आता है. ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 44 इज 30 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days. ओके, सो हमारे को गिवन क्या है. सो वंस वी हैव 30 men
देन 16 days 8 मैन, सो द यूनिट इज मैन एंड डेज, और जो 2 बार गिवन होता है उसको हम LHS में लिखते हैं, ठीक है। सो सिंस 30 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन हाउ मैनी डेज, 16 days, सो उसी काम को करने में एक आदमी को बताइए कम टाइम लगेगा ज़्यादा, ऑफ कोर्स बहुत सारा लगेगा टाइम, कैन डू द वर्क इन 16 मल्टीप्लाइड बाई 30 days, उसी काम को करने में काफ़ी ज़्यादा दिन लगेंगे। एंड अगर हमारे को 8 मैन हैव टू डू द सेम वर्क, तो व्हाट वी विल डू इसके बेसिकली द टाइम टेकन बाई 1 मैन टू कंप्लीट द वर्क, उसका 1/8 पोर्शन में 8 लोग कर लेंगे। सो 16 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 8, सो 8 2 16, ओके, सो 60 days. So this is our answer. 60 days is equal to option number D. Option number D, which is option number D in 44, is correct answer. Now moving on to the next question. In question number 45 we have Ram, Shyam and Mohan run at speeds of 75, 50 and 30 meter per minute. Okay, so here is person Ram, this person Shyam, and we have person Mohan, जिनका जो स्पीड्स हैं वो क्या हैं, उनका स्पीड है 75 meter per minute, and we have 50 meter per minute, and then we have 30 meter per minute. Okay, after how much time will they meet together for the first time running with the same speed? If they run with the same speed, तो कितने देर बाद सेम टाइम पर मिलेंगे? सो व्हाट वी विल डू इज कि HCF LCM पर बेस्ड क्वेश्चन, हम LCM निकालना है हमारे को, सो हम क्विकली एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं। 30, ओके, नाउ सो 5 से डिवाइड करते हैं, 25, 10, 6, अगेन डिविजिबल बाई, ओके 5 से कर देते हैं, 5 5 जा 2 जा 6, 2 से करेंगे 5 रिमेन सेम, 1 जा 3 जा, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम तो LCM would be 5 multiplied by 5 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 3, so the answer comes out to be 300. Okay, so the unit is minute. Okay, so they will meet after 300 minute. Okay, so 300 minutes when converted into hour, so that will be divisible by 60, so 5 hours. So 5 hours is the correct option, which is option number A. A option is correct for 45th question. All right, now we are into the last portion. आपको एक चीज़ देखनी होगी इसके अंदर, अगर आपको लगता है कि बिफोर स्टार्टिंग द पेपर, अगर आपको लगता है कि पीछे से आपको स्टार्ट करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो ए गुड स्ट्रेटजी कि आप पीछे से स्टार्ट करें अटैम्प्ट करना। अगर आपको लगता है कि यू आर कंफर्टेबल स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, विच इज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू, तो आप स्टार्टिंग से कर लीजिए। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 46 वी हैव रिप्रेजेंट 26 kg 5 ग्राम यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल्स। ओके, परफेक्ट, इट इज़ ए रेदर इजी क्वेश्चन, बट हाँ इसमें गलती होने के चांसेस काफ़ी हैं अगर आप ध्यान नहीं देंगे। तो 26 kg इज इक्वल टू 26,000 ग्राम एंड 5 ग्राम इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 प्लस हो जाएगा, सो 26,005 ग्राम, एंड when it is converted into decimal, so we will divide it by 1000, so that would be 26.005 kg. Option number B is correct for 46th question. Option number B is correct. Now in question number 47, कुछ क्वेश्चंस कम टाइम लेते हैं, वो जल्दी से हो जाते हैं। अगेन इट इज ए क्वेश्चन ऑन at what rate a sum of 6,000 will amount to 7,800 in 5 years. Okay, in this question we are provided that principal is equal to 6,000, ठीक है, and amount is equal to 7,800. अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। इट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, जो प्लस पी है LHS में जाकर माइनस हो जाएगा। ओके, सो दैट इज अमाउंट इज 7,800 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 1,800, यानी उस पर जो ब्याज मिला जिसको हम SI बोलते हैं, दैट इज 1,800। नाउ टाइम पीरियड इज 5 years एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम एक बार क्विकली हाईलाइट कर लेते हैं। सो दीज आर द 3 थिंग्स जो हमारे को जरूरत था। हम वैल्यू SI इज इक्वल टू PRT बाई 100, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो R का फॉर्मूला जो होगा
that would be SI multiplied by 100 upon P multiplied by time. So putting all these values which I have already marked in green, SI is 1800 multiplied by 100 divided by 6000 into 5. So 2 zeros से ये डिवीजन, ये डिवीजन, 3 जा 0 and 5, 30 upon 5 is 6. So 6% is our answer, which is option number D. 47th question में this is our answer. Moving on to the next question, 48th question. What will be the depth of a cubical pond whose volume is 729? Okay, in a cube, जब भी हमारे पास क्यूब होता है तो क्यूब की प्रॉपर्टी होती है कि all sides are equal. So in a cube, all sides are equal. All sides are equal. ठीक है. Now, so 729 वॉल्यूम इज इक्वल टू 729 मीटर क्यूब. सो प्लीज नोटिस कि जो इसकी यूनिट है वो मीटर क्यूब है. ओके, वॉल्यूम का क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब. साइड का क्यूब इज इक्वल टू 729 मीटर क्यूब. सो ए क्यूब इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 मीटर क्यूब. अगर किसी नंबर का क्यूब 729 है तो वो नंबर क्या होगा? द साइड ऑफ द क्यूब इज 9 मीटर. सो दिस इज आवर ऑप्शन. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर 48th क्वेश्चन. सो ये आपको याद करना पड़ता है. आप 25 तक क्यूब आप आराम से याद कर सकते हैं किसी भी नंबर्स के. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 49. इन क्वेश्चन नंबर 49 वी हैव, इट इज a question on V BODMAS, so we'll quickly do it. 3 into 7 plus 4 minus 6 divided by 3 minus 7 plus 45 division 5 multiplied by 4 plus 49. So according to V BODMAS rule, what we will be doing is कि पहली प्रायोरिटी जो होगी वो डिवीजन को दी जाएगी, तो हम कैप लगा देते हैं दोनों डिवीजन पर. डिवीजन में LHS रिमेन्स एज इट इज़ और RHS नीचे डिनोमिनेटर में चला जाता है. सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 7 प्लस 45 एंड डिवाइडेड बाई 5 इज 9 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 49. नेक्स्ट कैप जो लगेगी अकॉर्डिंग टू V BODMAS वुड बी ऑन मल्टीप्लीकेशन. ओके, सो 3 7 जा 21 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 7 प्लस 36 प्लस 49. ओके, सो जो पॉजिटिव नंबर्स हम उनको एक बार ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं. इन सभी को एक साथ प्लस करेंगे और इनका जो प्लस करने के बाद सम आएगा दैट वुड बी ओके, सो 110. और जो नेगेटिव नंबर्स जो रिमेनिंग है दैट इज -9. सो द आंसर वुड बी 101. 101 इज ऑप्शन नंबर ए. So A is correct answer. So this is our correct answer. Now moving on to the next one, final question of this chapter. This paper 50. So in what time a train whose length is 100 meter moving with the speed of this crosses a platform whose length is this? So if you observe carefully, ये क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर है. ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. इनके अंदर हम क्या करते हैं, जो प्लेन है उनकी जो लेंथ है उसको हम एक बार देखना होता है हमारे को कि जो ट्रेन है उसकी लेंथ क्या है और प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है. सो द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 100 मीटर. ओके, एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 150 मीटर. सो इसका मीनिंग क्या है? ये दोनों अलग अलग क्यों दिए गए हैं? देखिए, मैं एक आपको विजुअल डायग्राम बना के बता देता हूँ. सो लेट अस सपोज कि जो रेड से हमने ड्रॉ किया दिस इज द प्लेटफॉर्म. सो जब तक ट्रेन, मान लीजिए ये ट्रेन की लेंथ है जो हम ब्लू से बना रहे हैं. सो दिस इज आवर ट्रेन. और ये जब तक फाइनल पॉइंट को जब तक क्रॉस नहीं करती है, विच इज दिस पॉइंट, लेट अस कॉल इट के. जब तक के पॉइंट को क्रॉस नहीं करती है तब तक ये ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस नहीं किया है. सो जो टोटल जो जर्नी पूरी करनी है, जो प्लेटफॉर्म को पूरा करने के लिए, वो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का प्लस हो जाता है. 100 प्लस 150, दिस इज अ टोटल डिस्टेंस, जो डी हम बोलते हैं डिस्टेंस. ठीक है. और जो स्पीड हमारे को इन्होंने एग्जामिनर ने टू अंडरस्टैंड टू चेक आवर नॉलेज हमारे को दिया है स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में. सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड. सो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इट इज़ रेदर इजी. स्पीड है 1 किलोमीटर बाई 1 आवर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स. ठीक है. सो हम क्विकली एक बार कट कर देते हैं इसको. 61 जा 60 60 जा 0 0. सो 100 बाई 6
मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज आवर, जो दो चीज़ें हैं वो रेडी हो गई हमारा. सो द फर्स्ट वन इज डिस्टेंस विच इज़ लाइक ग्रीन वन, और जो सेकंड है जो है स्पीड, स्पीड को जिसको हम रेड बॉक्स में डाल रहे हैं. ओके, सो येलो से हाईलाइट कर दिया. नाउ पुटिंग ऑल दिस वैल्यू टू फाइंड आउट द टाइम. सो टाइम का जो फॉर्मूला लगेगा दैट विल बी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टोटल डिस्टेंस इज 250 मीटर्स डिवाइडेड बाई 100 अपॉन 6, ए अपॉन बी बाई सी. सो 250 अपॉन 100 और जो 6 है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, नाउ सो 2 3 जा 250 जा 51 जा 55 जा. ओके, सो 15 सेकेंड. 15 second means option number A. This is our answer. So here we finish 2019 All India Sainik Schools Entrance Exam. I hope आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आया है then please subscribe for more such videos. हम continuously अपने students के लिए, आप लोगों के लिए इन सेशंस को अपलोड करते रहेंगे. And we'll meet you in the next portion. Till then, take care.